So, welcome back students to Standard 10th Science Strategic Preparation for SSC Board Examination May-June 2021. Now here you can see 4th May and day 4. Today is 5th May and day 5 we should have. But I've shown you this picture because this is question number 13 which we did yesterday. We saw yesterday. We had to write structural formula of these 5 organic compounds. मैंने दिखाया तो सही. Maybe it was tough for you to understand. तो why not make it simple? ये 5 नहीं, कोई भी 50. Let's learn 50 organic compounds and how their structural formula can be drawn. वो सीख लेते हैं, बेसिक सीख लेते हैं. Alright, तो चलिए ये 5 क्या 50 आ जाएंगे आपको. If you enjoy the today's session, if you understand the today's session. Alright. So let's see, and I hope this session of chemistry is going to be very enjoyable, and yes, you will learn a lot from here. Okay, चलिए हमें alkanes चाहिए. Alkanes यहाँ देखो ANE, it ends with ANE. Now these alkanes are hydrocarbons. They are hydrocarbons. मतलब you will find only carbon and hydrogen. उसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पाएंगे. चलिए 1 कार्बन एटम वाला C, 2 कार्बन एटम वाला 2C लिखते हैं. 3 कार्बन एटम में मॉलिक्यूल में हो तो 3 लिखेंगे. 4 है तो 1 2 3 4 लिखेंगे. 5 में 1 2 3 5. देख लीजिए 5 तक बहुत इंपॉर्टेंट है. 1 कार्बन को मीथेन कहते हैं. ANE को ध्यान में रखिए. ANE. 2 कार्बन को इथेन कहते हैं. Yes, if 3 carbons are found in the molecule, then that alkane is called propane. Please remember this 5 basic. 4 carbon atom, then उसे कहते हैं butane. If it is 5, pentane. Please remember ANE. So ये सारे नेम में ANE एंड पे आया है. 1 कार्बन, yes, number of carbon atom 1, so methane number of carbon atom 2, ethane number of carbon atom 3, it should be propane number of carbon atom 4, butane number of carbon atom 5, pentane. अब देखो ये alkanes है, so single bond. कार्बन कार्बन के बीच भी सिंगल बॉन्ड. कार्बन और हाइड्रोजन के बीच तो हमेशा सिंगल बॉन्ड ही होते हैं. तो और रिमेंबर एवरी कार्बन एटम हैज 4 बॉन्ड्स. डोंट फॉरगेट. चलिए तो मैं ये 4 बॉन्ड दिखा रहा हूं यहां और हाइड्रोजन पेंसिल से लिख रहा हूं. सो दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ मीथेन. ओके, उसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? कार्बन 1 है और हाइड्रोजन 4 है, so that is 4. CH4 is molecular formula of methane and structural formula is this. चलिए now ये दूसरा अल्केन. अल्केन मतलब सिर्फ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मिलेगा सब में. तो 1 2 3 4, पहले कार्बन का 4 बॉन्ड हो गया. दूसरा का 1 बॉन्ड ऑलरेडी है. नाउ सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, दैट्स इट. दिस इज द स्केलेटन स्ट्रक्चर ऑफ इथेन. Now put hydrogen. So ये structural formula हो गई. Right? Now molecular formula. Carbon atoms 2 है and hydrogen 2 और 2 4 and 2 6 H6. And this is the molecular formula of ethane and here is the structural formula. चलिए अब प्रोपेन की structural formula चाहिए. तो number of carbon atom 3 है तो I put that 3. Each carbon atom has सिंगल बॉन्ड. हर जगह पे सिंगल बॉन्ड ही मिलेगा. ऑलराइट, बिकॉज दिस आर अल्केन्स. प्रोपेन ANE है तो सिंगल बॉन्ड, ANE है तो सिंगल बॉन्ड. तो कार्बन कार्बन के बीच मैंने सिंगल बॉन्ड डाल दिए. ऑलराइट, बाकी के भी सिंगल बॉन्ड ही रहेंगे जो हाइड्रोजन के साथ फॉर्म करेंगे. सो 1 2 3 हाइड्रोजन ऊपर, 3 हाइड्रोजन नीचे, 6 हो गए और राइट और लेफ्ट में 2. सो व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? कार्बन एटम्स आर 3 इन नंबर. नीचे 3 ऊपर 3, उसका डबल 6 और एंड वाले 2, 6 + 2 8.
This is the molecular formula of propane and here is the structural formula. चलिए, now you want structural formula and molecular formula of butane. Alright, चलिए, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन एटम, तो मैंने 4 कार्बन एटम डाल दिया. ANE से पता चलता है कि कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है और हर एक कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं टोटली. तो एक बॉन्ड आ गया, दूसरा, तीसरा, चौथा. For second carbon, it's already having 2 bonds, so third and fourth. Third carbon atom already having 2 bonds, right or left में, so ऊपर नीचे. Fourth carbon atom is having only 1 bond, left में, एक right में डालो, एक ऊपर डालो, एक नीचे डालो. So this is skeleton structure of butane. अब उसमें हाइड्रोजन डाल दो, so that becomes structural formula of butane. And this is structural formula of butane, उसका नाम ब्यूटेन है. Alright, और यहाँ C4 का डबल 10 plus 2 12. That is the molecular formula of butane. Now pentane 1 2 3 4 5. So pentane है तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 5 और ANE है तो सब कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड. ओके, और फर्स्ट कार्बन का एक बॉन्ड आ गया लेफ्ट में, टॉप bottom. Second carbon is already having 2 bonds left right, top bottom, so total 4 हो गए. Third carbon atom is having left right bond, so top bottom 4 हो गए. Fourth carbon atom is having left right bond, so top bottom 4 हो गए. Fifth carbon atom is having only 1 bond on left side, so right top bottom उसके भी 4 हो गए. So this becomes a skeleton structure of pentane. If I put hydrogen here, all right, now that becomes the molecular formula of pentane. Alright children, these are hydrocarbons. Alkanes are hydrocarbons. So you will find only carbon and hydrogen. Understood children? Okay, fine. Now एक और चीज समझनी है. Halogens. किसको कहते हैं halogens? Which group of element is called halogens? Chlorine, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, इसको कहते हैं हेलोजेंस. तो चिल्ड्रन, इफ ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है किसकी है? मीथेन की, है ना चिल्ड्रन? ये मीथेन है, ये मीथेन है. बट इफ आई रिमूव 1 हाइड्रोजन एंड पुट क्लोरीन, तो अब ये फॉर्मूला बदल गई. C1 है, H3 है और बाद में Cl. इसके कहते हैं क्लोरोमीथेन. दैट इज कॉल्ड क्लोरोमीथेन. आर यू गेटिंग मी? चलिए हम एक और हाइड्रोजन को निकाल दे एंड पुट क्लोरीन एटम. अब फॉर्मूला बदल गई. कार्बन इज 1, हाइड्रोजन इज 2, H2 और क्लोरीन भी 2 हो गए, Cl2. ये डाइक्लोरो डाइक्लोरो और एक ही कार्बन है, सो मीथेन, डाइक्लोरोमीथेन. उसका दूसरा नाम भी है चिल्ड्रन, यू कैन कॉल अदर नेम ऑल्सो. पहला वाला, एक ही क्लोरीन हो तो मिथाइल क्लोराइड. एक कार्बन है तो मिथाइल, मीथेन से मिथाइल और क्लोराइड. ऑलराइट, ओके. अब 2 क्लोरीन है लेकिन कार्बन एक ही है तो मिथाइल, मीथेन नहीं, मीथेन में तो सब हाइड्रोजन है, मिथाइल और क्लोराइड, डाइक्लोराइड. सो 2 ways यू कैन नेम इट चिल्ड्रन. अब यहां देखो, मैंने एक हाइड्रोजन को निकाल दिया और आयोडीन लगा दिया. सो फॉर्मूला बन गई कार्बन कार्बन C2, 2 4 और 1 5, H5 NI. पहले था इथेन, अब इथाइल हो गया क्योंकि एक हाइड्रोजन निकल गया, इथाइल. और आयोडाइड, उसका दूसरा नाम भी है इथेन, तो आयोडो इथेन ऐसे भी कह सकते हैं. ऑलराइट, चलिए मैं क्या कर रहा हूं, एक और हाइड्रोजन यहां से निकाल रहा हूं और दूसरा आयोडीन डाल दिया. तो कार्बन कितने हैं? 2, तो C2. हाइड्रोजन 2 और 2 4 ही है, सो H4. और आयोडीन 1 और 1 2 है, सो I2. ओके, इसमें 2 कार्बन है, सो वी कैन से इथाइल
सारे हाइड्रोजन नहीं है सो इथाइल, सारे हाइड्रोजन होते तो इथेन, ओके। और आयोडीन एक और एक दो है सो डाई आयोडाइड, डाई आयोडाइड, ऑलराइट, या तो डाई आयोडो इथेन ऐसे भी कहते हैं। चल समझ में आई बात? ओके, अब मैं ब्रोमीन ले रहा हूं, यहां से एक हाइड्रोजन निकाल दिया और ब्रोमीन डाल दिया, सो फॉर्मूला क्या हो गई? C4, H एक कम होगा 11 में, 12 में से एक कम 11, और Br, इसको कहेंगे ब्रोमो, ब्रोमो, और 4 कार्बन सो ब्यूटेन, ब्रोमो ब्यूटेन, या तो ब्यूटेन में से एक हाइड्रोजन निकल गया सो ब्यूटाइन भी कहते हैं, ब्यूटाइन, सॉरी ब्यूटाइल, ब्यूटाइल, और ब्रोमाइड, ब्रोमाइड, ब्यूटाइल ब्रोमाइड। I hope you have understood, children. So this is how you can write alkanes: methane, ethane, propane, butane और पेंटेन। ऑलराइट, फिर उसमें हेलोजन, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करते हैं हेलोजन से, सो क्लोरीन से क्लोरो, ब्रोमीन से ब्रोमो, फ्लोरीन से फ्लोरो, आयोडीन से आयोडो, ऑलराइट, और पीछे लिखते हो तो क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड, आयोडाइड। इज दैट क्लियर? सो वी फिनिश्ड विथ alkanes, children. Let's see alkenes. ओके, चलिए देखो यहां ENE है, ऑलराइट, सो उसमें डबल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, C डबल बॉन्ड C, लेकिन कम से कम एक डबल बॉन्ड, सब कार्बन, कोई भी दो कार्बन के बीच सारे पेयर ऑफ कार्बन एटम्स में डबल बॉन्ड हो ऐसा नहीं, कोई भी एक, एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड होना चाहिए। चलिए हम नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 ले तो 1, फिर 2 ले, फिर 3 ले, फिर 4 ले, फिर 5 ले, राइट। अब एक ही कार्बन लिया तो उसमें तो सारे सिंगल बॉन्ड ही होंगे, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ तो सिंगल बॉन्ड ही होता है, तो डबल बॉन्ड कार्बन का, अरे 2 कार्बन तो चाहिए ना डबल बॉन्ड के लिए, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच हमेशा सिंगल बॉन्ड ही फॉर्म होता है। सो यू कैन नॉट हैव इथीन, सॉरी दिस इज मिथेन, ने 1 में वो मिथेन कहते हैं, ANE को ENE से लगा दो सो मिथिन, लेकिन मिथिन तो बनेगा ही नहीं, ओके, यहां डबल बॉन्ड बनेगा, और हर एक कार्बन को कितने बॉन्ड होते हैं? 4, तो ये फर्स्ट वाले कार्बन के राइट में 2 बॉन्ड है, ये लेफ्ट में 2 बॉन्ड, ऐसे लिख दो। सेकंड कार्बन को लेफ्ट में 2 बॉन्ड है, 2 और चाहिए, ऐसे लिख दो। ये हो गई स्केलेटल फॉर्मूला, स्केलेटल स्ट्रक्चर, स्केलेटल स्ट्रक्चर। लेकिन मैं यहां हाइड्रोजन 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 लिख दूं तो ये हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और किसकी? चिल्ड्रन 2 कार्बन एटम है, सो मिथेन, सॉरी इथेन, इथेन, लेकिन ANE बेसिक तो इथेन है, लेकिन डबल बॉन्ड है, सो ANE शुड गो एंड राइट EN। सो दिस इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ इथीन। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेंगे तो C2 और H4, ऑलराइट। चिल्ड्रन यहां एक जनरल फॉर्मूला लिख देते हैं, जरा देख लो। कार्बन एटम 1, हाइड्रोजन एटम अल्केन्स में नीचे 2 ऊपर 2, मतलब जितने n कार्बन हो तो नीचे और ऊपर, सो 2 टाइम्स n, और एंड वाले 2 ऐड करो, सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन्स। अब अल्किन्स में देखो 2 कार्बन नीचे, 2 और 2 4, सो अल्किन की जनरल फॉर्मूला CnH twice n, दैट्स इट। चलिए अब नेक्स्ट, यहां 3 कार्बन एटम है, अल्कीन्स है, तो बेसिक तो प्रोपेन है, बेसिक क्या है? प्रोपेन, लेकिन ये ANE निकल जाएगा और ENE मतलब डबल बॉन्ड, तो एक डबल बॉन्ड लगा दो, बाकी सिंगल बॉन्ड, कम से कम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, दोनों में डबल बॉन्ड मत लगाओ। चलिए ये कार्बन एटम, फर्स्ट कार्बन एटम इज हैविंग 2 बॉन्ड टू इट्स राइट, सो 2 और चाहिए। ये कार्बन एटम के लेफ्ट में 2, राइट में 1, तो एक ही चाहिए। ये चाहे ऊपर लिखो, चाहे ऊपर लिखो या नीचे लिखो, 4 बॉन्ड होने चाहिए। और लास्ट कार्बन एटम इज हैविंग ओनली 1 बॉन्ड, राइट
टॉप बॉटम। सो ये स्केलेटल स्ट्रक्चर हो गया। अब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना हो तो हाइड्रोजन लिख दीजिए, हाइड्रोजन लिख दीजिए। ऑलराइट चिल्ड्रन, सो ये हो गया प्रोपीन। 1 2 3 प्रोपेन, लेकिन डबल बॉन्ड है इसलिए ENE लग गया प्रोपीन। और फॉर्मूला C3 और 1 2 3 4 5 6 उसका डबल H6। इज दैट क्लियर? अब 4 कार्बन एटम है, इट इज रिलेटेड टू ब्यूटेन, लेकिन मुझे ENE डबल बॉन्ड चाहिए, सो पहले वाले को डबल बॉन्ड दे दिया। ऑलराइट, किसी को भी डबल बॉन्ड दे सकते हैं, लेकिन जनरली यहां पहले वाले को दे दो। डू अंडरस्टैंड? आगे से भी लिख सकते हैं, पीछे से भी लिख सकते हैं। चलिए, नाउ 4 बॉन्ड हर एक कार्बन का एडजस्ट कर लो। फर्स्ट कार्बन इज हैविंग 2 बॉन्ड्स टू इट्स राइट, थर्ड और फोर्थ। ऑलराइट, सेकंड कार्बन एटम इज हैविंग 2 बॉन्ड्स टू इट्स लेफ्ट, ये थर्ड और ये फोर्थ। ऊपर लिखना है तो ऊपर लिख सकते हैं। थर्ड कार्बन एटम इज हैविंग ओनली 1 बॉन्ड, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। और लास्ट कार्बन एटम इज हैविंग ओनली 1 बॉन्ड, ये राइट में दूसरा, तीसरा, चौथा। सो स्केलेटल स्ट्रक्चर हो गया। इफ यू राइट हाइड्रोजन, it becomes a structural formula of butene. This is butene, C4 और H double 8. All right, उसी तरह 5 कार्बन एटम है तो यू नो पेंटेन, लेकिन आपको चाहिए पेंटीन, मतलब डबल बॉन्ड। सो कहीं पे भी आपको डबल बॉन्ड लगाना होगा। ऑल राइट, सो पहले कार्बन के 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लगा दो। नाउ यू एडजस्ट द 4 कार्बन एटम्स, 4 बॉन्ड्स फॉर ईच कार्बन एटम्स टू इट्स राइट, टू लेफ्ट राइट। एक चिल्ड्रन यहां ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं, या ये भी लिख सकते हैं, कोई भी 2 बॉन्ड, लेकिन हम ऐसे लिखते हैं क्रॉस। चलिए, इसके 2 और 1 3 4, इसके एक ही बना है तो दूसरा, तीसरा, चौथा। इसका भी एक ही है तो दूसरा, तीसरा, चौथा। इसका लेफ्ट में एक, दूसरा, तीसरा, चौथा। सो स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ पेंटीन इज रेडी। इफ यू राइट हाइड्रोजन, आपको मिल गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ पेंटीन। ऑलराइट, पेंटीन। और ये C5 और H उसका डबल 10, ये जनरल फॉर्मूला। ऑलराइट चिल्ड्रन, अभी सपोज कि आपको चाहिए क्लोरो इथिन। इथिन, ये इथिन है लेकिन क्लोरो इथिन, तो एक हाइड्रोजन को क्लोरीन से सब्स्टिट्यूट कर दो, ये क्लोरो इथिन हो गया। इथिन है इसलिए डबल बॉन्ड रखा। आपको चाहिए डाइब्रोमो प्रोपिन, डाइब्रोमोप्रोपिन चाहिए, तो आप 2 हाइड्रोजन को ब्रोमीन से सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गई डाइब्रोमोप्रोपीन की। इज दैट क्लियर? सो ऐसे हेलोजन उसमें डाल सकते हैं, जैसा नाम वैसा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आएगा। आई होप alkenes are clear to you children. Okay, proceeding further, we'll see alkynes now. Children, alkynes, देखो हमें alkynes देखना है। सो यहां YNE means triple bond. YNE means triple bond. Okay, number of carbon atom 1, तो वो तो मीथेन है। नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 लोगे तो इथेन है। नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 लोगे, ये बेसिक जो है वो प्रोपेन है। नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 लोगे तो ब्यूटेन है, ये बेसिक अल्केन्स याद रखना। नंबर ऑफ कार्बन एटम 5, देन पेंटेन। लेकिन हमें तो ट्रिपल बॉन्ड वाला चाहिए, और ट्रिपल बॉन्ड वाला में ANE निकल जाता है और YNE लग जाता है। YNE, प्रोपेन बिकम्स प्रोपाइन, इथेन बिकम्स इथाइन, मीथेन बिकम्स मिथाइन। लेकिन देखेंगे मिथाइन तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच नहीं होगा। चलिए, मैंने मीथेन लिख दिया, तो 1 कार्बन, यहां 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। अब मुझे ट्रिपल बॉन्ड चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड।
तो ये तो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच तो सिंगल बॉन्ड ही बनेगा, सो ये तो मीथेन ही बनकर रह जाएगा, मिथाइन कभी भी नहीं बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड नहीं आएगा। और ट्रिपल बॉन्ड बनाना हो तो कार्बन, 2 कार्बन कम से कम चाहिए, तो यहां तो एक ही कार्बन है, सो यू विल नेवर हैव मिथाइन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। यस, अब शुरुआत हो गई, ये दोनों के बीच ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल है। अब फर्स्ट कार्बन इज ऑलरेडी हैविंग 3 बॉन्ड्स, सो 1 बॉन्ड बचा, वो लेफ्ट में लिख दो। सेकंड कार्बन इज हैविंग ऑलरेडी 1 बॉन्ड, तो एक बॉन्ड बचा, राइट में लिख दो। सो दिस इज स्केलेटल स्ट्रक्चर। स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑलरेडी मिल गया हमें, किसका? इथाइन का। YN शोज डबल बॉन्ड, ओके, और यहां H लिख दो तो ये हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? चलिए, अब प्रोपाइन चाहिए तो 3 कार्बन चाहिए, अब YN ही है, सो कम से कम 2 कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। यहां ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी नहीं है, वो सिंगल बॉन्ड कर दो, कम से कम एक, तो एक ही लेते हैं, ज्यादा नहीं। नाउ एडजस्ट 4 bonds for every carbon atom. First carbon atom 3 bonds है, तो एक बचा। Look, second carbon atom 3 और 1 4 हो गया। Last carbon atom only 1 bond, so 1 2 3 3 more. ये हो गया skeletal structure। यदि आप हाइड्रोजन लिख देते हो तो this becomes the structural formula of प्रोपाइन। 3 कार्बन एटम है, सो प्रोपेन और YN लग गया। अब फॉर्मूला देखिए, कार्बन 2 और हाइड्रोजन भी 2, कार्बन 3 और हाइड्रोजन 4। आगे देखते हैं, चलिए। नाउ ब्यूटाइन चाहिए, सो पहले ट्रिपल बॉन्ड दे दिया क्योंकि YN है ट्रिपल बॉन्ड वाला। एक बॉन्ड यहां 4 हो गया, एक बॉन्ड यहां 4 हो गया, इसका एक बॉन्ड 2 3 4, इसका एक बॉन्ड 2 3 4, सो स्केलेटल स्ट्रक्चर हो गया ब्यूटाइन का। नाउ इफ आई पुट हाइड्रोजन, आई गॉट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, दिस इज ब्यूटाइन। कार्बन एटम 4, हाइड्रोजन 2 4 और 6। अब यहां कौन सी जनरल फॉर्मूला लगती है अल्केन की? CnH ट्वाइस N, जो ट्वाइस N है उसमें से -2, देखो 2 है, 2 का डबल 4, 4 में से 2 माइनस करो 2 3। ऑल राइट, fine, let me complete this. That light is getting off. Fine, I think it's still clear. Yeah, number of carbon atom 3, 3 का डबल 6, 6 में से 2 निकालो 4, कार्बन एटम 4, 4 का डबल 8, 8 में से 2 निकालो 6, मिला ना? यह कार्बन एटम 5, हाइड्रोजन उसका डबल 10, 10 में से 2 निकालो 8, देख लो मिलेगा आपको। ये ट्रिपल बॉन्ड, ये 4 बॉन्ड हो गए, इसके भी 4 हो गए, इसके 2 और 2 4, इसके 2 लेफ्ट राइट और 2 ऊपर नीचे, उसके लेफ्ट में एक राइट में और 4, ये 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 4 5 6 7 8 मिल गया। इज दैट क्लियर? सो दिस इज इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन और दिस इज पेंटाइन। अब इसमें हेलोजन डाल दो, एक हेलोजन, ब्रोमीन डाला तो ये हो गया ब्रोमो इथाइन। इसमें एक क्लोरीन डाला तो ये हो गया क्लोरोप्रोपाइन, एक और क्लोरीन डाला तो डाई क्लोरोप्रोपाइन। दैट इज सिंपल। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड अल्केन्स। अल्केन्स जिसमें सिंगल बॉन्ड है CnH ट्वाइस N प्लस 2, अल्कीन्स उसमें डबल बॉन्ड है CnH ट्वाइस N इज द जनरल फॉर्मूला, और अल्काइन CnH ट्वाइस N minus 2, that is the general formula. The simplest alkane is methane. Simplest alkene is ethene, not methane. And simplest alkyne is ethyne and not methine. Is that clear, children? Good. All right, children. So we finished with
alkanes, alkenes and alkynes. They are hydrocarbons. Now we move to alcohol. Children, please remember the functional group of alcohol. Functional group, उसको हाइड्रोक्सिल कहते हैं. It is called hydroxyl. एक बॉन्ड और OH. Remember this. This is hydroxyl. Alright. अब नंबर ऑफ कार्बन एटम आप 1 लोगे तो अल्केन मिलता है मीथेन. ऑलराइट. अब आप ई निकाल दो और उसको ऑल लगा दो, सो आपको मिल गया मीथेनॉल. सो मीथेन से मिलेगा मीथेनॉल. नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 हो तो द अल्केन इज इथेन. ऑलराइट. ये ई निकाल दो and write all. So what you get? Which alcohol you get? Ethanol. Like that. Take number of carbon atoms 3. That is propane. Alright. E को निकालो and write all and you get propanol. Propanol. Take number of carbon atoms 4. बोलिए कौन सा अल्केन है? यस, ब्यूटेन. उसमें क्या निकाल दो? ई. अल्कोहल का OL. OL लगा दो. सो क्या मिला आपको? ब्यूटेनॉल. ऑलराइट. फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम 5. आई तक लो. पेंटेन. उसमें से ई निकालो एंड राइट ऑल फॉर अल्कोहल. सो व्हाट यू गॉट? pentanol या pentanol. Is that clear children? Okay. अब देखो 1 कार्बन एटम, इथेनॉल में 2, 1 2, प्रोपेनॉल में 3, 1 2 3, ब्यूटेन में 4 होते हैं तो ब्यूटेनॉल में भी 4 होंगे. पेंटेन में 5 होते हैं तो पेंटेनॉल में भी 5 होंगे. ऑलराइट. नाउ इट इज वेरी इंटरेस्टिंग. अब फंक्शनल ग्रुप देखो. ऑलराइट. नॉर्मली ये 4 बॉन्ड है, यहां 6 बॉन्ड है, यहां और ज्यादा. जस्ट काउंट चिल्ड्रन. फाइन. ये कौन सी फॉर्मूला बन गई? बोलिए. Skeletal structure of what? This is of methane, ethane, propane, butane, pentane. अब इसको तो हाइड्रोजन ही लगेगा. Each bond is connected to hydrogen. अब एक हाइड्रोजन को निकालना होगा और फंक्शनल ग्रुप इंट्रोड्यूस करना होगा. तो एक चीज आपको जरूर चेक करनी है कि जो फंक्शनल ग्रुप है उसमें कार्बन है कि नहीं है. इज द कार्बन इन दैट ग्रुप? नो. द क्वेश्चन आंसर इज नो. तो आपको सिर्फ एक हाइड्रोजन निकाल देना है. एक हाइड्रोजन निकाल दो और फंक्शनल ग्रुप लगा दो. सो हमारी फॉर्मूला हो गई CH3 और OH और ये कंपाउंड बन गया मीथेनॉल. ऑलराइट. चलिए यहां भी हाइड्रोजन 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 है ना. ऑलराइट. अब कौन सा फंक्शनल ग्रुप हम ऐड करने जा रहे हैं? हाइड्रोक्सिल या अल्कोहल. उसमें कार्बन है? नो. तो सिर्फ हाइड्रोजन निकालो और ऐड दैट फंक्शनल ग्रुप. अब ये है CH3, ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये है CH2 और OH, या आपको ऐसे लिखना हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं. कार्बन एटम कितने हैं? 2. हाइड्रोजन 2 और 2 4 और 1 5 एंड देन OH. सो these are the molecular formula of ethanol. Is that clear? चलिए यहां भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऊपर 3 नीचे 3, राइट में 1 लेफ्ट में 1. ये है प्रोपेन. लेकिन वी वांट प्रोपेनॉल. प्रोपेनॉल मीन्स अल्कोहल. अल्कोहल मीन्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप. दैट मीन्स OH. उसमें कार्बन नहीं है तो यू जस्ट रिमूव
वन हाइड्रोजन, जब कार्बन नहीं है तो सिर्फ हाइड्रोजन को निकालना है और OH लगा दो। ऑलराइट, ये दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला कार्बन 3 हाइड्रोजन से अटैच है, दूसरा कार्बन ऊपर नीचे 2 हाइड्रोजन से, तीसरा कार्बन ऊपर नीचे 2 हाइड्रोजन से, और उसके बाद फंक्शनल ग्रुप। और दूसरी फॉर्मूला कार्बन एटम 3, साथ में लिख दो C3, हाइड्रोजन नीचे 3 ऊपर 3 6 और एक 7, सो H7 और OH। दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ प्रोपेनॉल। और ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, H की जगह पे OH लिख दोगे तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब देखो नेक्स्ट, दिस इज ब्यूटेन, दिस इज ब्यूटेन, करेक्ट। नाउ आई वांट ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल, ऑल मीन्स अल्कोहल, अल्कोहल मीन्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप मीन्स OH जिसमें कार्बन नहीं है, सो यू जस्ट रिमूव 1 हाइड्रोजन। अब मैं रिमूव कर रहा हूं, आई एम रिमूविंग 1 हाइड्रोजन और उसकी जगह पे फंक्शनल ग्रुप OH लगा दो। ये रहा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेनॉल, C4, H4 और 4 8 और 1 9 NOH। और दूसरा तरीका लंबा वाला, C और 3 H3, दूसरा कार्बन ऊपर नीचे H2, तीसरा कार्बन ऊपर नीचे H2, चौथा कार्बन ऊपर नीचे H2 और फंक्शनल ग्रुप OH। सो दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दो में से कोई भी एक लिख सकते हैं। उसी तरह आप समझ सकते हैं ना, हाइड्रोक्सिल यहां लगा दो, एक हाइड्रोजन निकाला और बाकी के सब हाइड्रोजन। दिस इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ पेंटेनॉल। इज दैट क्लियर? फॉर्मूला बनेगी C5, H5 और 5 10 और 1 11 और OH। और दूसरा तरीका लिखना है तो वो लंबा वाला, पहले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन H3, दूसरा कार्बन लिखा 2 हाइड्रोजन H2, तीसरा कार्बन और 2 हाइड्रोजन H2, चौथा कार्बन 2 हाइड्रोजन H2, पांचवा कार्बन 2 हाइड्रोजन H2 और OH। दिस इज पेंटेनॉल। Is that clear? So this is how we write the structural formula of alcohols: methanol, ethanol, propanol, butanol, pentanol. Is that clear, children? All right. Okay. Now let's see organic acid, जिसको कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, और इसमें है COOH फंक्शनल ग्रुप। दिस इज कार्बोक्सिल ग्रुप या कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ओके, COOH। अब देखो इसमें कार्बन है, देयर इज कार्बन हियर, कार्बन इज देयर। तो हमें क्या करना होगा, पहले N = 1 जो मीथेन है, ऑलराइट, उसको लिखते हैं 1 कार्बन। N = 2 जो इथेन है अल्केन में, तो 2 कार्बन एटम। N = 3 जो प्रोपेन है, तो मैं सिर्फ 3 कार्बन लिख रहा हूं, यहां बॉन्ड भी नहीं लिखा। N = 4 जो ब्यूटेन है, ऑलराइट, सो 1 2 3 4। और N = 5 जो पेंटेन है, ऑलराइट, 1 2 3 4 5। अब मुझे चाहिए ऑर्गेनिक एसिड, सो यहां E निकालो और OIC, E निकालो OIC, E निकालो OIC, E निकालो OIC, E निकालो OIC। सो मिथेनोइक एसिड क्या बनेगा, मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, एसिड लिखना पड़ेगा। फिर प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड दूसरा नाम भी है, बाद में देखेंगे उसको। ब्यूटेनोइक एसिड, फिर पेंटेनोइक एसिड। सो जो E था उसकी जगह पे OIC लगा दो। ऑलराइट, ओके चिल्ड्रन, हैव यू अंडरस्टूड? अब नॉर्मली हमारे पास ये हाइड्रोजन होता है, करेक्ट। चलिए अब क्या देखे, क्या ध्यान रखे, अब हाइड्रोजन नहीं निकालना है, ये जो फंक्शनल ग्रुप यहां ऐड करना है जरूर, बट इट कंटेन्स 1 कार्बन, तो एक कार्बन को निकालेंगे
और कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे, ऑलराइट, और उसकी जगह पे लिख दो COOH। तो यहां स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या हो गई, सिर्फ H है, उसके राइट में बॉन्ड और COOH। दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ मिथेनोइक एसिड। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये इथेन है। अब हम ऐड करने जा रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप, जिसमें कार्बन है, तो एक कार्बन को निकालो और उसके साथ 3 हाइड्रोजन को भी निकालो, ओके, और उसकी जगह पे फंक्शनल ग्रुप डाल दो COOH, और इसको सही ढंग से लिखे तो ये पहला कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ है और सेकंड एंड पे कार्बोक्सिल ग्रुप है। सो दिस इज या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ इथेनोइक एसिड। देखो कार्बन 2 है, कार्बन एक ही है इसमें। चलिए उसी तरह आप समझ गए, अब मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूं, ये कार्बन और उसके 3 हाइड्रोजन निकल गए और COOH आ गए। चलिए नेक्स्ट वन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये लास्ट वाला, ये तीनों हाइड्रोजन के साथ निकल गया और OH लिख दिया, ये गया। सो ये हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेनोइक एसिड। चलिए नेक्स्ट वन, H H H H H H H H H, ये 3 हाइड्रोजन के साथ निकल गया और COOH आ गया। आर यू गेटिंग मी? सो ये पेंटेनोइक एसिड बन गया। अब फॉर्मूला लिखेंगे तो H और उसके बाद COOH, इसकी फॉर्मूला लिखेंगे तो यू कैन सी CH3, पहला कार्बन हाइड्रोजन 3 के साथ जुड़ा है और COOH, यहां पहला कार्बन 3 हाइड्रोजन का साथ जुड़ा है, दूसरा कार्बन 2 हाइड्रोजन के साथ और COOH। आप शॉर्ट में लिखना चाहते हो तो 2 कार्बन और हाइड्रोजन 2 और 2 4 और 1 5, H5 और COOH। यहां 3 हाइड्रोजन 3 और 3 और 3 6 और 1 7 और COOH। दूसरा तरीका, पहला कार्बन 3 हाइड्रोजन से जुड़ा है, दूसरा कार्बन 2 हाइड्रोजन से जुड़ा है, तीसरा 2 हाइड्रोजन से, चौथा 2 हाइड्रोजन से और लास्ट वन तो फंक्शनल ग्रुप COOH। दिस इज पेंटेनोइक acid. I hope you have understood, children. Still we have to see aldehyde, ketone or ester. That we'll see in the next session. All right. I hope you have understood. See you in the next session. Till then, goodbye. Have a nice day, children.